हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 6 जुलाई 2023। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज which we are going to discuss today is about the Taiwan India relation. Then we are also going to discuss about the Shanghai Cooperation Organization, then Zaporizhzhia nuclear power plant which is in Ukraine and why it is in danger. These are some of the important topics on which we are going to focus today. So let's start the news. The first important news, as we can see over here, is that PhD is no longer mandatory for teaching jobs, says University Grants Commission. So एक body है, that is University Grants Commission. It is a statutory body. Please write me in the comment box that who is the chairman of the University Grants Commission. So University Grants Commission has relaxed the criteria for appointing teachers in colleges and universities by reversing its old decision where it had made PhD mandatory for assistant professors. तो ये रेगुलेशन जो है वो 2018 में आया था। अब जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है उन्होंने इसको चेंज किया है। नाउ if you will see that PhD qualification will be it will continue to be optional. Now the national eligibility test, the state eligibility test and state level eligibility test shall be the minimum criteria for direct recruitment to the post of assistant professor. देखिए यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि it is about assistant professor job in all higher education institutions, says UGC chairman M. Jagadish Kumar. Then further he has said that you can see that SET and SLAT won't be the criteria for selecting assistant professors in Central University. Okay, this is also important. So this new amendment will be effective from July 1st, 2023. Now over here, this is an editorial striking a blow against affirmative action in America. So affirmative action जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है. If you will see article 15 and 16 of the constitution, so they provide, they are the articles which provides for the reservation of seats in education and employment for backward classes. पर यहाँ पे जो आर्टिकल जो है वो जो डिस्कस कर रहा है वो ये डिस्कस कर रहा है कि एफर्मेटिव एक्शन जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है दैट इज क्वाइट डिफरेंट. सो यार वी हैव टेकन द बैकग्राउंड ऑफ a very important case which was in news recently, that is students for fair admission versus Harvard. तो यहाँ पर जो the United States Supreme Court है उन्होंने जो decision दिया है that there was some race conscious admission policies at Harvard and the University of North Carolina. So they have termed this policy as unconstitutional and violative of the Equal Protection Clause in the 14th Amendment of the US Constitution. उसके बाद अगर आप देखेंगे जो रीजनिंग दिया है यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने वो 4 इंपॉर्टेंट रीजनिंग दिया है इसको इनवैलिडेट करने के लिए. फर्स्ट इज दैट इट एम्फसाइज्ड दैट द इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज इज कलर ब्लाइंड. मतलब कि जो इक्वल प्रोटेक्शन क्लॉज है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो राइट टू इक्वालिटी जिस हिसाब से समझा जाता है वो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में उसको नैरोली समझा जाता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ब्रॉडली डिफाइन किया हुआ है किस तरीके से स्टेट जो है वो डिप्राइव्ड क्लासेस को या बैकवर्ड क्लासेस को आगे लाने की कोशिश करेगी. बट अब उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे जो यूएस में जो एक रैशनल चलता है दैट इज दे आर सेइंग दैट एनी लॉ इंक्लूडिंग द इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इट इज कलर ब्लाइंड एंड इक्वल प्रोटेक्शन मीन्स आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आइडेंटिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये हो गया कि सबको एक जैसा मिलना चाहिए. बट फ्रेंड्स आप अब हमारे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो यहाँ पे इसको माना गया है कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, सो इनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था वो सालों साल से चलता आया है. सो दे आर नॉट एट इक्वल फिटिंग विद जनरल क्लास और जनरल कास्ट. So that's why they are given reservations in jobs and employment. The second is that it affirmed that any such contravention could only be justified if the state has a compelling goal. मतलब कि affirmative action जो है वो आप किसी भी क्लास के लिए कर सकते हैं but that it should have a very compelling goal and affirmative action is absolutely necessary to attain it. मतलब कि मान लीजिए कि गोल ये है टू क्रिएट एन इक्वल सोसाइटी, तो जो एक्शन स्टेट लेगी उसका वो गोल होना चाहिए, दैट इज वेरी कंपेलिंग गोल. तो यहाँ पे जो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया वो कहा कि जो हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना का गोल है दैट इज ट्रेनिंग फ्यूचर लीडर, it is commendable but it is very vague. The third is that the court reiterated an earlier ruling that the affirmative action policy should have a sunset clause. मतलब कि द थर्ड थिंग शुड बी कि ये अगर मान लीजिए कि आप कोई एफर्मेटिव एक्शन ले रहे हैं
किसी भी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका एक सनसेट क्लॉज मतलब उसका एक डेडलाइन होना चाहिए. The next is that court has held that affirmative action should not rely on racial stereotype or disadvantage anyone based on race to aspects it identified as problematic in this case. तो यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है, और पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए. दे आर सेइंग कि जब आप एफर्मेटिव एक्शन लेते हो तो इसमें रेस नहीं आना चाहिए, ठीक है ना. मीन्स देयर शुड नॉट बी अ रेशियल स्टीरियोटाइप्स कि मान लीजिए कि वहाँ पे ब्लैक पीपल हैं, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, तो उनके लिए आप ले रहे हो, तो ऐसा नहीं, वो सबके लिए होना चाहिए. दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैव बीन ऑब्जर्व ओवर हियर. अब अगर हम इसको कंपेयर करें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के साथ, सो लेट्स कम हियर इन दिस पैराग्राफ दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर क्लियर थैंक्स टू इट्स फ्रेमर्स. It expressly allows affirmative action in favor of backward classes in matters of education, that is Article 15, and jobs, that is Article 16. ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे. अगर आप इसमें आर्टिकल 16 खास करके देखेंगे तो इसमें लिखा है कि दैट इट परमिट्स रिजर्वेशन इन जॉब्स, समथिंग दैट इज यूनिक टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि यहाँ पे एजुकेशन में भी रिजर्वेशन है और जॉब्स में भी रिजर्वेशन है. फाइन. उसके बाद आप देखेंगे दैट द डिफरेंस बिटवीन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो अगर आप ये देखेंगे कि जो इंडियन कोर्ट्स है दे डू नॉट डिबेट एज टू वेदर एफर्मेटिव एक्शन इज फंडामेंटली परमिसिबल. मतलब वो इसके बारे में कभी आर्ग्यू करते ही नहीं कि एफर्मेटिव एक्शन देना है कि नहीं देना है. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 में वो क्वाइट क्लियरली मेंशन्ड है. ओके. उसके बाद अगर आप देखेंगे जो यूएस में जो है दैट इट सीक्स टू एलिमिनेट ऑल डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन रेस यूनिवर्सली. ओके, दैट इज वन ऑफ द rationale in US. उसका रीजन क्या है? That equality cannot mean different things for different individuals. Now see, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक डाइवर्जेंस आता है. मैंने यहाँ पे क्या कहा कि यूएस में क्या चल रहा है? That it does not means different things for different peoples. मान लीजिए कि रिजर्वेशन किसी पर्टिकुलर ग्रुप को मिल रहा है और किसी पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं मिल रहा है, इस तरीके से. Fine. बट अगर आप इंडिया की अगर बात करें तो ये जो इक्वालिटी है यूएस में, दैट इज इट इज कॉल्ड एज द नैरो व्यू ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट इज अ फॉर्मल इक्वालिटी एंड हेंस इट प्रिवेंट्स यूएस कोर्ट्स फ्रॉम अलाउइंग ब्रॉड बेस्ड रेस कॉन्शियस मेजर्स. बट अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में सिंपल फंडा है, बहुत ही हमारी कंडीशंस को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में उसको इंक्लूड किया गया है दैट इट डज नॉट ट्रीट ऑल डिस्टिंक्शंस ऑफ रेस और कास्ट अलाइक. तो यहाँ पे देखिए ऑथर्स ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है दैट सर्टन क्लासेस सच एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस हु हैव फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द पास्ट आर नॉट कंसिडर्ड ऑन अ लेवल फील्ड विद अदर्स. तो उन्हें हेल्प करने के लिए ही एफर्मेटिव एक्शन आया हुआ है सो दैट इन ऑर्डर दैट दे शुड आल्सो हैव अ इक्वल अपॉर्चुनिटी, so that's why they have access to reservation. So in this if you will see that रिजर्वेशन इज नॉट एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी. तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो बहुत ही ब्यूटीफुली आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जो है वो रिजर्वेशन की बात करता है, तो वो भी एक एफर्मेटिव एक्शन है और वो भी एक इक्वल क्लास इक्वालिटी अचीव करने की कोशिश करता है. तो हमारे यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उसको इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं समझा जा रहा है जैसे यूएस के इस केस में हुआ है. बट रिजर्वेशन है इट इज अ टूल दैट फर्दर्स द इक्वालिटी. तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्सटैंटिव इक्वालिटी. तो यहाँ पे हमने इक्वालिटी के दो डिस्टिंक्शन देख लिए, एक तो है फॉर्मल इक्वालिटी, दूसरा क्या है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी. फॉर्मल इक्वालिटी में क्या है? फॉर्मल इक्वालिटी में यह है कि जो लॉज हैं वो सबके लिए एक समान है, वो सबको इक्वल तरीके से देखता है. किसी को अगर एफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, ठीक है, so that is not covered in formal equality, that is covered in substantive equality जो इंडिया में है. so if you will see that जो डिसीजन यूएस में जो लिया गया है ओके इन दिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी केस, तो ये इंडियन कोर्स के लिए अनइमेजिनेबल है बिकॉज इंडिया में जो है वो एक जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अ इक्वल सोसाइटी. so if you will just see that Indian courts they have a very different standard to meet under Article 15 and Article 16 of the Constitution, and their and reservations in education and public employment has already been enshrined in our Constitution, where the class seeking reservation is socially and educationally backward and inadequately represented. ये हमारा क्राइटेरिया होता है रिजर्वेशन देने का. उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में आप देखेंगे इट रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा फ्रॉम द स्टेट. फाइन, कि मतलब रिप्रेजेंटेशन जो है सारे कास्ट का प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है. एंड देन देयर इज अ
कैप ऑन रिजर्वेशन एट 50%। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में सनसेट क्लॉज के बारे में बात किया गया है। तो सनसेट क्लॉज जो है, तो जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जब रिजर्वेशन दिया गया था अंडर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सनसेट क्लॉज की बात की थी। तो वो एक रिजोनेट करता है यूएस के इस आइडिया से। नाउ फ्रेंड्स, अब हम एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेते हैं तीस्ता सेतलवाद का। ये काफी ये 1.5 साल से समझिए न्यूज चल रहा है, और ये केस इस तरीके का है कि तीस्ता सेतलवाद को गुजरात हाई कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने वाला था, पर वो बेल नहीं मिलता है उनको बल्कि तुरंत रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। तो उस गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टे लगाया हुआ है। सो दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द केस। अब हम फटाफट इसके हाइलाइट्स लेते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक्सटेंड किया है टिल जुलाई 19 द इंटरिम स्टे ऑन गुजरात हाई कोर्ट डिसीजन। तो ये जो गुजरात हाई कोर्ट डिसीजन था, इट वाज फॉर डिनाइंग हर रेगुलर बिल एंड डायरेक्टिंग हर टू सरेंडर इमीडिएटली। तो इस गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। फाइन। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, that is the circumstances are equally unusual and indicate an attempt to keep her in prison for as long as possible। मतलब कि जो तीसरा सेतलवाद के साथ जो चल रहा है, तो यहाँ पे ऑथर का कहना यह है कि authorities they want her to keep in prison for as long as possible। ऐसा क्यों? सो देखिए, ये जो प्रेजेंट केस है तीसरा सेतलवाद का, it arose from the observation by a bench of the court virtually canvassing for her arrest and prosecution for keeping the pot boiling। मतलब तीसरा सेतलवाद जो है वो एक केस को परस्यू कर रही है कि जो विक्टिम्स थे जाकिया जाफरी केस में, उनको जस्टिस मिले ड्यूरिंग द गुजरात राइट्स ऑफ 2002। नाउ पुलिस ने तुरंत इनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर किया जब इन्होंने आवाज उठाई, और फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर्स आर बी श्री कुमार और संजीव भट्ट के अगेंस्ट भी एफआईआर रजिस्टर किया, एक्यूजिंग देम ऑफ फैब्रिकेटिंग द एविडेंसेस। फाइन। उसके बाद सितंबर 2022 की ये बात है, दैट द कोर्ट हैड गिवन हर इंटरिम बेल। ठीक है, और फिर गुजरात हाई कोर्ट को कहा कि डिसाइड ऑन हर रेगुलर बेल पेटिशन। तो यहाँ पे फिर गुजरात हाई कोर्ट हैज सेड दैट द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस एंड द मटेरियल अगेंस्ट हर टू डिनाई हर बेल एंड रिजेक्ट द रिक्वेस्ट टू सस्पेंड द ऑर्डर फॉर सम टाइम। और यहाँ तक गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि दैट गिविंग हर बेल वुड वाइडन द कम्युनल पोलराइजेशन इन गुजरात। अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने एक्सप्लेनर सीरीज पे भी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, एज वी नो दैट शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी जो हेड ऑफ द स्टेट समिट की जो हेड ऑफ द स्टेट समिट होती है, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड इन केस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान द प्राइम मिनिस्टर्स दे अटेंड। रिसेंटली ईरान हैज बिकम द न्यू मेंबर of Shanghai Cooperation Organization, the ninth member of SCO. Okay, and India and Pakistan they became the member in 2017। Shanghai Cooperation Organization का United Nations General Assembly में ऑब्जर्वर स्टेटस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हेड ऑफ द स्टेट समिट था, it was hosted by India virtually and was chaired by our Prime Minister Shri Narendra Modi। Now let's see the importance of Shanghai Cooperation Organization। So there is one area which we call it as Eurasian group। So it comprises of countries like जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीज हैं, उसमें there are 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान एंड अदर कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना यहाँ से हो गया, फिर इंडिया पाकिस्तान हो गया, अब रिसेंटली ईरान है। आगे चल के हो सकता है कि बेलारूस भी इसका मेंबर बन जाए। Now, if you will see the Shanghai Cooperation Organization, then it is comprises of the third of the global GDP, a fifth of the global trade, a fifth of global oil reserve, and about 44% of natural gas reserve। ये SCO का जो है ये इम्पोर्टेंस है, खास करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज दे आर वेरी गुड रिजर्व्स ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व एंड 44% ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व। इट मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। फाइन। If the next is that it also focuses on regional security and connectivity। ठीक है, so which are the very important for India's growth। Okay, so if you will see that this group provides a framework for India to deal with terrorism in Pakistan and Chinese aggression। Then if you will see, then this Shanghai Cooperation Organization जो है,
It also gives India an interface with Central Asian markets and resources. तो ये जो Central Asian markets हैं, these four important countries except Turkmenistan, so these are Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. So it gives access to them also. So we will understand that what are the other things India is doing to get access to Central Asian market. At the same time, if you will see that non-alignment is the part of India's foreign policy since India achieved independence. So over here, if you will see that India by being the member of SCO and Quad simultaneously, so India is somewhere aligned with the ambitions of multipolar world and strategic autonomy in its foreign policy. अब हम फ्रेंड्स एससीओ समिट को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आपको एससीओ के बेसिक्स जानकारी भी काफी ज्यादा आपको मिल जाएंगे। तो एससीओ का जो प्रीडिसीसर ऑर्गेनाइजेशन है वो है शंघाई 5। तो दोस्तों जब 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, so Central Asian countries, the five Central Asian countries which were part of USSR, they became Central Asian republics, they became independent. So in order to resolve the border disputes with this country and to maintain tranquility at the borders, so रशिया, चाइना, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, देखिए उस वक्त सिर्फ 5 कंट्रीज, ये 1996 की बात है, ये रशिया, चाइना, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, दे केम टुगेदर टू फॉर्म द शंघाई 5 फाइन इन 1996। तो इनका जो उस वक्त जो फोकस था तो वो था रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर, रिडक्शन ऑफ बॉर्डर ट्रूप्स एंड टेररिज्म। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी। देखिए यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि अब टेररिज्म की बात 1996 में क्यों हो रही है, तो जरूरी थी वो, क्योंकि उस वक्त अगर आप देखेंगे सो देयर वाज फियर दैट टेरर ग्रुप्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अपना बेस बनाया था वो इन्फिल्ट्रेट न कर जाए इस रीजन में। फाइन। उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान ने अपनी इच्छा जाहिर की दैट इट वांट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग एंड देन इन 2001 शंघाई 5 का जो नाम था इट चेंज फ्रॉम शंघाई 5 टू शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सेक्रेटेरिएट जो है वो है बीजिंग में। देखिए एससीओ के दो परमानेंट स्ट्रक्चर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। एक है परमानेंट सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट विच इज इन बीजिंग, और एक है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर विच इज इन ताशकंद इन उज्बेकिस्तान। उसके बाद एससीओ के मेन गोल्स क्या हैं, तो ये है स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस अमंग द मेंबर स्टेट्स, प्रमोटिंग देयर इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, making joint efforts to maintain and ensure peace, security and stability in the region, then moving towards the democratic, fair and rational new international political and economic order. Okay. उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं लाइक यूएस एंड यूरोप, सो दे हैव स्टार्टेड सेइंग दैट एससीओ इज एंटी नेटो फॉर प्रपोजिंग मिलिट्री कोऑपरेशन। फाइन। नाउ लेट्स सी द एससीओ डेल्ट विद बायलैटरल इश्यूज। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दे बोथ आर मेंबर्स ऑफ एससीओ, बट एससीओ हैज डेल्ट विद दिस बायलैटरल इश्यूज बोथ द कंट्रीज सिंस 2014। इंडिया एंड पाकिस्तान इन्होंने अपने सारे टाइज खत्म कर दिए हैं, पर दोनों कंट्रीज कंसिस्टेंटली एससीओ के 3 काउंसिल्स में हमेशा पार्ट लेते हैं। एक तो हेड्स ऑफ स्टेट में, एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट में, एक काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में। फाइन। अब जो रिसेंटली जो एससीओ समिट हुआ था तो उसमें भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2 इंपॉर्टेंट चीजों को क्रिटिसाइज किया था। एक तो था कि पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और सेकेंड द बीआरआई प्रोजेक्ट ऑफ China. Because of that, India did not join any economic cooperation agenda or declaration in the SCO. But if you will see over here, SCO का जो RATS एंटी SCO का जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज और एंटी टेररिज्म एक्सरसाइजेज होते हैं, इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड चाइना दे बोथ टेक पार्ट। अब देखिए इसमें इंडिया का क्या फायदा है, अब ईरान मेंबर बन गया, ठीक है। इंडिया जो है ईरान में छाबार पोर्ट जो है वो कनेक्ट कर रहा है ताकि वो छाबार पोर्ट के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज, बाकी जो कंट्रीज हैं उस रीजन में उनके साथ वो कनेक्ट हो सके। सो फॉर इंडिया इट इज अ गुड सिचुएशन बिकॉज इंडिया हैज ऑलरेडी बिल्ट द कनेक्टिविटी स्ट्रेटेजी थ्रू ईरान छाबार पोर्ट where it operates a terminal and through the international north-south transport corridor that goes through Iran and Central Asia to Russia. Okay, so India will now have access to Central Asian countries bypassing Pakistan. उसके बाद जो उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है ये रिसेंटली फिर से इलेक्ट हुए थे, इन्होंने रेफरेंडम हुआ था तो अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा जाएगा उज्बेकिस्तान में। तो शौकत मिर्जियोवेव, so he has said that Central Asian states that are doubly landlocked
They will seek to build a multi-modal route via Afghanistan to ports in both Pakistan and Iran. So it will help India to conduct trade with the region while staying out of China's Belt and Road Initiative. अब देखिए यहाँ पे कुछ challenges क्या हो सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए ईरान के आ जाने की वजह से जो इंडिया का क्लोज पार्टनर है, ओके, एंड विच हैज सफर्ड फ्रॉम सो इंडिया हैज सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म एमिनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, सो इट विल bolster India's push to end terror in these countries. Okay, then US, it has accused Iran of supplying weapons to Russia, and the expected induction of Belarus next year will only strengthen this image of SCO. कौन सा? That SCO is the anti-West forum. Now, the next is nuclear power plant, that is Zaporizhzhia nuclear power plant, which is in Ukraine. So, देखिए Zaporizhzhia is one of the region which has been annexed by Russia. Okay, so currently Zaporizhzhia, which is in Zaporizhzhia city, it is in Russian control. It is located on the bank of Dnieper River. इसके पास 6 VVR 1000 reactors हैं, जिसकी total capacity है 6 gigawatt. इसमें अगर आप देखेंगे जो water है, it is used as both coolant and moderator. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि दिस प्रेशराइजर इट होल्ड्स द वाटर एट हाई बट कांस्टेंट प्रेशर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बॉइलिंग. अगर बॉइलिंग हो गई तो एक्सीडेंट हो जाता है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जब वाटर हीटअप होता है तो जो ये हीट है इट इज अलाउड टू मूव टू अ कूलिंग सर्किट एंड इट कन्वर्ट्स अ सेपरेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू स्टीम which is used for running the turbine to generate the electricity. Okay, so if you will see कि unlike Chernobyl जहाँ पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था 86 में, so जो VVR 1000 रिएक्टर है और जो उसका पावर जनरेशन यूनिट है Zaporizhzhia में, they are placed in the large air tight chamber called as contaminant. अब यहाँ पे एक रिपोर्ट है बेलोना रिपोर्ट, ठीक है, जो लुधियाना बेस्ड एनजीओ का एक रिपोर्ट है. तो उन्होंने रिस्क एवेल्युएट किया है. तो उन्होंने कहा है कि जो प्रिंसिपल डेंजर है Zaporizhzhia पावर प्लांट का, okay, it is that primary circuit water could depressurize the steam and escape into the air. ठीक है, तो ये जो प्राइमरी जो ये वाटर है, ये रेडियो एक्टिव वाटर will contain iodine 131. जो आयोडीन 131 है वो एयर में बहुत इजीली स्प्रेड हो सकता है और काफी ज्यादा कंटेमिनेशन कर सकता है. उसके साथ साथ केशियम 137 which has a half life of 30 years, it can also be released and it was responsible for contaminating much of Chernobyl surrounding after the accident. The next is कि Zaporizhzhia के साथ और चेरनोबिल के साथ एक प्रॉब्लम है. चेरनोबिल में क्या था कि जो एक्टिव सब्सटेंसेस जो लीक हो रहे थे वो सस्टेन्ड फैशन में रिलीज हो रहे थे, पर अगर Zaporizhzhia में अगर थोड़ा सा भी डैमेज हुआ तो ये सारे जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है वो एक बार में ही बाहर निकल जाएंगे. सो इट कैन डैमेज very quickly in a larger area. उसके बाद if you will see what are the other concerns, so one is that Fukushima like scenario can develop at the nuclear power plant in Zaporizhzhia. Okay, if you will see that if it gets disconnected from the external power grid. The second is the working conditions of 3000 or more people at plant, most of whom who have refused to sign the new employment contracts with their new Russian employers. The next is cabinet gives nod to data protection bill. So this data protection bill, which is going to replace Information Technology Act 2000, it has got the cabinet approval. Okay, along with that, if you will see now, this bill will be tabled in the parliament along with the Indian Telecommunication Bill, which is going to overhaul the Telegraph Act or going to replace the Telegraph Act. तो यहाँ पर आप देखेंगे, so the data protection legislations, इसके जो कुछ highlights हैं वो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. So it specifies norms on management of personal data of Indian residents and it requires explicit consent from people whose data is collected and used. Then the next thing is that the bill, it essentially allows lay persons to complain to data protection board consisting of technical experts constituted by the government if they have a reason to believe that their personal data has been used without their consent. This is also one of the significant rule कि बिना consent के आप data use नहीं कर सकते. And the next is, if you will see, it also outlines practices for entities that collect personal data on how that data should be stored and processed to ensure that there is no breach. Now this bill, it draws from an EU law. EU का भी एक law है for protecting the data. उस law का नाम क्या है? The General Data Protection Regulation, and benchmarks 23 instances in which taking consent for recording data is not possible. These are like during accident or natural disasters. इसके बाद यहाँ पे एक नॉवल तरीका भी है कि मान लीजिए कोई एंटिटी है,
if it wants to admit that उससे एक breach हो गया and wants to pay a penalty as a mitigation measure to avoid court litigation, then that has been provided in the bill. But the penalties है वो ₹250 crore है for each instance of breaches. The next is there is Data Protection Board of India which could fine firms which do not protect user data. यहाँ पे जो fine होगा वो 10,000 से 500 crore होगा in different cases. The next is as per the latest draft, courts and law enforcement agencies they enjoy wide exemptions from key requirements because the bill requirements do not apply when personal data is processed. ये देखो important है, अगर आपका personal data है वो processed हो रहा है in the interest of prevention, detection, investigation or prosecution of any offense or convention of contravention of any law, तो वहां पे इस बिल्स के प्रोविजंस नहीं लागू होंगे. अब यहाँ पे एक आरटीआई एक्ट का आता है, दैट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट दे हैव रेज्ड कंसर्न्स दैट अमेंडमेंट टू आरटीआई 2005, जिसमें ये जो अब आरटीआई के अंदर क्या होगा कि दैट इट विल प्रोहिबिट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन. ओके, सो द बिल आर्ग्यूज दैट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मे रिफ्यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन that could not hold public office holders accountable. The next is the background. ये बहुत important है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. So if you will see that the bill comes after multiple versions floated by the Union government, okay, that was started by way back in 2017 with the KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एक लैंडमार्क जजमेंट है इंडिया का, where privacy was declared as the fundamental right to life and personal liberty under Article 21 of the Constitution. The next is in boost to ties Taiwan to set up office in Mumbai. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं टर्निंग पॉइंट पे. देखिए इंडिया और ताइवान का कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इंडिया भी द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज करता है, तो उसका डिप्लोमेटिक टाइज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट इज मेनलैंड चाइना के साथ है. ताइवान को हम क्या कहते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना. तो हमारा कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है ताइवान के साथ, फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस. ओके, बट इफ यू विल सी दैट इन 1995 द बोथ द इंडिया एंड ताइवान they decided to open a TECC, okay, that is if you will see the Taipei Economic and Cultural Center in New Delhi and India Taipei Association in Taipei. तो न्यू दिल्ली में क्या खुला, TECC, और ताइपाई में इंडिया ताइपाई एसोसिएशन. फाइन. उसके बाद लेटर इफ यू विल सी कि चेन्नई में भी ताइपाई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खुला. अब जो तीसरा खुलने जा रहा है वो खुलने जा रहा है मुंबई में. So if you will see that Taiwan's foreign ministry said the move to establish in Mumbai a Taipei economic and cultural center, the term used to describe Taiwan's de facto diplomatic mission because India and Taiwan do not maintain formal diplomatic relations. The next is the 8th edition of the International Conference of Women in Physics will be the first to be organized in India on July 10 to 14. ये इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर है, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. दैट इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन फिजिक्स वाज हेल्ड इन 2023 इन विच कंट्री. फाइन. ये जो कॉन्फ्रेंस है इट इज द इवेंट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स. 2002 में पहली बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रांस में. अब इसका एम क्या है, इसका एम है टू एड्रेस जेंडर इम्बैलेंस इन फिजिक्स एजुकेशन. देखिए फिजिकल एजुकेशन नहीं है, ये फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री वाला फिजिक्स and research worldwide. So it is jointly organized by Gender in Physics Working Group of the Indian Physics Association and Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai. तो ये जो कॉन्फ्रेंस है it will be virtually hosted by the Homi Bhabha Center for Science Education. The next is Chandrayaan 3 integrated with launch vehicle LVM3. Okay, so LVM3 जिसको हम GSLV भी कहते हैं, यहाँ पे LVM3 का फुल फॉर्म देखिए क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3. Launch Vehicle Mark 3 LVM3. So Indian Space Organization is planning to launch now Chandrayaan 3 mission in July, okay, with LVM3. This is important, okay. इसको हम पहले GSLV Mark 3 भी कह देते हैं. तो ये जो विंडो है लॉन्च का, ठीक है, ये जुलाई 12 से 19 है एंड इसरो के चेयरमैन है उनका देखिए यहाँ पे नाम दिया है, दैट इज एस सोमनाथ. तो ये जो चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ते हैं, इट इज इंडियाज थर्ड मून मिशन, okay, to demonstrate end-to-end capability in safe landing and roving on the lunar surface. तो इसमें देखिए क्या क्या होगा, इसमें होगा एक इंडिजिनियस लैंडर मॉड्यूल, लैंड करेगा मून पे. देन देयर विल बी अ प्रोपल्शन मॉड्यूल, ओके,
and then there will be a rover. So rover will walk on the moon surface for collecting data from the lunar surface. So see, यहाँ पे जो propulsion modules है सबके देखिए functions दिए गए हैं. तो if you will see that the lander जो इसमें lander होगा, it has the capability to soft land. Soft land का मतलब जो speed required है उसी required speed से वो descend करेगा. And then this lander will have a rover. What will be the function of rover? To carry out in situ chemical analysis of lunar surface during the course of its mobility. उसके बाद propulsion module का main function क्या है? That is to carry the lunar module from launch vehicle injection till full lunar 100 किलोमीटर circular polar orbit. तो यहाँ पे जो लॉन्च किए जाएंगे हमारे मिशन, ठीक है, so it will be in the 100 kilometer circular polar orbit and it will separate the LM from the PM. So the PM also has one scientific payload which will be operated post separation of LM. अब यहाँ पे इंटरनेशनल में एक न्यूज है, दैट इज यूके, कनाडा, स्वीडन, यूक्रेन टेक ईरान टू टॉप यूएन कोर्ट. अब देखिए अचानक से न्यूज क्या आ गया. तो ये न्यूज जो है वो 2020 का है, ठीक है. देखिए एक फ्लाइट थी जिसका नाम था PS752. इट वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम तेहरान टू कीव ऑन जनवरी 8 2020. देन यहाँ पे ये कि इट वाज शॉट डाउन सून आफ्टर इट टुक ऑफ फ्रॉम ईरान. अब इसमें जो पीपल थे, ओके, देयर वर अराउंड 176 डेथ्स and the nationals were residents of Canada, Sweden, Ukraine, and UK, as well as Afghanistan and Iran. So now the United Kingdom, Canada, Sweden, and Ukraine, they have launched a case against Iran at the United Nations highest court. अभी United Nations highest court क्या है भाई? That is International Court of Justice. ठीक है? So ये जो International Court of Justice है, it is the one of the principal organs of United Nations, and it is headquartered in the Peace Palace, The Hague, Netherlands. Okay. एक इकोनॉमी से जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, दैट इज अ ग्लोबल रूपी में रेज वोलेटिलिटी. तो यहाँ पे आरबीआई का एक ग्रुप है, दैट इज इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप. उन्होंने अपना एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया है कि अगर हम रूपी को इंटरनेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है. सो दे हैव सेड दैट इट मे रिजल्ट इन इंक्रीज्ड एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी. ठीक है, मतलब आपने अपना अकाउंट ओपन कर दिया, सो इट जो एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी है, तो एक्सचेंज रेट को आप रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से जो वोलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. देन देयर कैन बी एक्सटर्नल शॉक्स एज फंड्स कैन फ्रीली फ्लो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया. बट इसके अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं, सच एज लिमिटेड एक्सचेंज रेट रिस्क, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके. So, friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.